اعضاء کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ خصوصاً آج کی مجلس کے جو بانیان ہیں رانا برادران، ان کے جان مال رزق اولاد میں برکت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ تو دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم 5، 12، 14 معصومین کے صدقے میں خصوصاً بانی مجلس کہ جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبر میں وسعت عطا فرمائے اور ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے اور شفاعت جناب سیدہ اور شفاعت امام حسین نصیب فرمائے۔ درود پڑھے محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ آپ کافی حضرات تشریف فرما ہے، نعرے کا جواب بلند آواز سے دیں۔ نعرہ تکبیر۔ تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس اعضاء میں تشریف لایا کریں، کیونکہ جتنی دیر مومن مجلس حسین میں تشریف فرما بیٹھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی زندگی میں وہ وقت شامل نہیں کرتا۔ تو مجلس حسین کی بڑی عظمت ہے، باہر کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ ذکر حسین کو سنا جائے اور ذکر حسین کے تناظر میں لیا جائے۔ تو میں تمام مومنین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے احباب کو، دوستوں کو، نوجوانوں کو یہی ہدایت کیا کریں کہ جب آپ گھر سے چل پڑے ہیں تو پھر حسین کے ذکر کو اہمیت دو، دنیا کو اہمیت نہ دو۔ صلوات پڑھے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ، مجیدا لم یزل محمودا لا یزال، باری المسموکات داہ المدہوبات، جبار الارضین والسماوات، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، الرابطۃ بین العبد والمعبود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ صلوات بلند آواز سے۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو بھی قرآن اور وجود قرآن کے عنوان پر ہوگی، اور میں نے اس آیت پر 2-3 مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، اور یہ سورہ واقعہ کی آیتیں ہیں۔ سورہ واقعہ قرآن حکیم کا وہ سورہ ہے جس کا براہ راست تعلق جناب امیر علیہ السلام کی ذات گرامی سے، اور معصوم کا فرمان ہے کہ جو ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ قیامت کے دن جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا۔ تو ارشاد خداوندی ہے کہ عزت والا قرآن
یہ کریم قرآن، یہ طاہر قرآن، یہ بابرکت قرآن، یہ مبرہ قرآن، یہ منزہ قرآن، یہ ہر عیب سے پاک قرآن ایک کتاب میں ہے، اور وہ کتاب ہے رسول کا وجود۔ وہ کتاب کون ہے؟ رسول کا وجود۔ اور ذات واجب نے ارشاد فرمایا کہ سوائے مطہر ہستیوں کے اس وجود کتاب کو کوئی جان نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، آئیے بغیر کسی تبصرے کے اور تمہید کے میں اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ شیعت نام ہے نظام الہی کا۔ شیعت کچھ اور نہیں ہے کہ جو دنیا کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی مجالس میں نہ جاؤ، یہ خون ریزی کرتے ہیں، ان کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی، حسین کی مجلس میں آنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، یہاں حلالی اور حرامی کی پہچان ہوتی ہے۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ یہاں حلالی اور حرامی کی پہچان ہوتی ہے۔ ذکر حسین حلالی اور حرامی کی پہچان ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، شیعت نام ہے نظام الہی کا، شیعت نام ہے قانون الہی کا۔ میں نے عرض کیا ایک جملہ کہہ کر اپنی تقریر کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا رسول ہر حالت میں قرآن سے افضل ہے۔ میں دلیلیں دوں گا اس پر کہ ہمارا رسول ہر حالت میں قرآن سے افضل ہے۔ کیسے افضل ہے؟ کیونکہ قرآن میراث ہے، رسول وارث ہے، قرآن مشروط ہے، رسول شرط ہے۔ اگر رسول نہ ہوتا تو قرآن نہ ہوتا۔ میں نے کیا ہمارا رسول ہر حالت میں قرآن سے افضل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملت اسلامیہ نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ غلطی کی کہ انہوں نے رسول کو نہیں سمجھا۔ اگر رسول کو سمجھتے تو ان کو قرآن بھی سمجھ میں آ جاتا اور رسول کا وسیع علی بھی سمجھ میں آ جاتا، لیکن انہوں نے غلطی یہ کی کہ اپنے رسول کا 3 مرتبہ آپریشن کروایا۔ اب جائیں جا کر کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں، رسول کا 3 مرتبہ آپریشن کروایا۔ کہ جب پیدا ہوئے تو جبرائیل نے آپریشن کیا اور وہ بھی دل کا۔ جب اعلان نبوت کیا تو جبرائیل نے آپریشن کیا اور وہ بھی دل کا۔ اور جب معراج پر گئے تو جبرائیل نے آپریشن کیا اور وہ بھی رسول کے قلب کا۔ سبحان اللہ! اگر یہ رسول ہے تو یہ رسول ہمارا رسول نہیں ہے، کسی اور نبی کے دل کا آپریشن جبرائیل نے کیا ہے۔ کبھی کسی مسجد سے آواز آئی کہ آدم کے قلب کا آپریشن ہوا، نوح کے قلب کا آپریشن ہوا، ابراہیم کے قلب کا آپریشن ہوا، موسیٰ اور عیسیٰ کے قلوب کا آپریشن ہوا؟ نہیں، جب بھی بات ہوتی ہے تو رسول کے لیے ہوتی ہے۔ تم نے رسول کو ہی نہیں سمجھا۔ کاش دنیا کو معراج ہی سمجھ میں آ جاتا تو کبھی ایسی غلطی نہ کرتے، رسول کے دل کا آپریشن نہ کرتے۔ میں نے عرض کیا میرے دوستو، مولوی بغیر آپریشن کے عالم بن سکتا ہے؟ جملہ میں نے عرض کر دیا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مولوی بغیر آپریشن کے عالم بن سکتا ہے، بغیر آپریشن کے تم ڈاکٹر بن سکتے ہو، انجینئر بن سکتے ہو، پروفیسر بن سکتے ہو، تو پھر رسول کا آپریشن کیوں؟ دنیا نے پتا چلا کہ رسول کو ہی نہیں سمجھا۔ اگر دنیا رسول کو سمجھتی تو ان کو معراج سمجھ میں آ جاتا۔ یہ رسول کیوں گئے تھے معراج پر؟ یہ رسول کیوں گئے تھے عرش پر؟ میرے دوستو شیعہ سنی بھائیو، میں نے تو کتب میں یہی پڑھا، سیاستہ سے لے کر طبقات ابن سعد تک، کہ رسول کے صحابی کہتے ہیں کہ جس دن رسول کو معراج ہوئی، ہم جو آئے شام کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی رسول کی جوتی کو ٹانکے لگا رہے۔ بڑا جملہ کہہ رہا، علی رسول کی جوتی کو ٹانکے لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں پوری جوتی گئی عرش پر۔ بڑا جملہ ہے میرے بھائی، سر نہ ہلاؤ، سر نہ ہلاؤ، کافر ہی جوتی گئی عرش پر۔ کون سی جوتی گئی عرش پر؟ جس کو علی نے ٹانکے لگائے تھے۔ ارے یہ تو
जूती को अली का हाथ लग जाए वो तो अर्श पर पहुंचती है। जब जूती को अली का हाथ लग जाए वो तो अर्श पर पहुंचती है। तो फिर भी तुम्हें शिया में तो समझ में नहीं आया कि हम 24 घंटे अली अली क्यों करते हैं। अरे जब जूती को अली का हाथ मस हो जाए वो जूती अर्श पर पहुंचती है। रसूल की जूती गई अर्श पर, अर्श तक नहीं, अर्श तक नहीं, आसमानों तक नहीं, रसूल की जूती गई अर्श पर। ये अर्श की डेफिनेशन क्या है, अर्श की तारीफ क्या है? तो अर्श की डेफिनेशन ये है कि जहां तमाम रिफतें खत्म हो जाएं उसका नाम है अर्श। पूरी तवज्जो चाहता हूं। मैंने अर्ज किया कि बड़े बड़े आलम गुजर चुके हैं जिनकी जमील हैदर जूती के बराबर भी नहीं, लेकिन आप मेरी मेहनत को भी देखें कि मैं कितनी मेहनत यहाँ साहिवाल में कप्तान अहमद इमाम पारका में कर रहा हूँ। ये आप मेरी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 14वीं तकरीर सुन रहे हैं और मैं एक तकरीर के जुमले दूसरी तकरीर से टच नहीं होने दे रहा। तो आप मेरी मेहनत को भी देखें। रसूल की जूती गई अर्श पर। सलवात पढ़ ले मौला की ज़ात पर। गर्मी भी बहुत थी लेकिन ठंड भी बन गई है। अब अली अली का लुत्फ आएगा। यहाँ मेरी रूह खड़ी है, यहाँ अगर आपकी रूह यहाँ आएगी तो फिर अली अली करने का लुत्फ आएगा। रसूल की जूती गई अर्श पर, अर्श तक नहीं, आसमानों तक नहीं। अर्श की डेफिनेशन ये है कि जहां तमाम रिफतें खत्म हो जाएं, जहां तमाम बुलंदियां खत्म हो जाएं, जहां तमाम इज्जतें खत्म हो जाएं, जहां तमाम फजीलतें खत्म हो जाएं, उसका नाम है अर्श। बड़ा जुमला कह रहा हूं, जहां तमाम फजीलतें खत्म हो जाएं। बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए, दुरूद पढ़े मौला की ज़ात। मैं जो ये खून दे रहा हूं तो आपके लिए दे रहा हूं। आप पूरी तवज्जो से मुझे सुने। आप कम नहीं है, हजारों की तादाद में मलक यहाँ आए हुए हैं। ये गरीब हुसैन की मजलिस है, ये किसी के डेरे की परे नहीं है। मेरे दोस्तों, हम सिर्फ इश्तिहार निकालते हैं, घर से पकड़ कर किसी को हुसैन की मजलिस में नहीं लाते, क्योंकि ये मजलूम की मजलिस है। मजलूम की मजलिस को मजलूम की मजलिस समझो। दुनियावी काम करने तो घर पर छोड़ दो, यहाँ पर आने की जरूरत क्या है? अगर यहाँ आए हो तो अपने नफ्स को हवाले कर दो हुसैन इब्न अली के। मैं आज ये कर रहा था कि तमाम रिफतें, इज्जतें, फजीलतें, बुलंदियां जहां खत्म हो जाएं उसका नाम है अर्श। पता चला तमाम रिफतें नीचे, रसूल की जूती ऊपर। बड़ा जुमला है। तमाम फजीलतें नीचे, रसूल की जूती ऊपर। तमाम इज्जतें नीचे, रसूल की जूती ऊपर। पहला आसमान नीचे, रसूल की जूती ऊपर। दूसरा आसमान नीचे, रसूल की जूती ऊपर। तीसरा आसमान नीचे, रसूल की जूती ऊपर। चौथा आसमान नीचे, रसूल की जूती ऊपर। पांचवा आसमान नीचे, रसूल की जूती ऊपर। छठा आसमान नीचे, रसूल की जूती ऊपर। सातवां आसमान नीचे, रसूल की जूती ऊपर। आदम नीचे, रसूल की जूती ऊपर। नूह नीचे, रसूल की जूती ऊपर। इब्राहिम नीचे, रसूल की जूती ऊपर। मूसा नीचे, रसूल की जूती ऊपर। ईसा नीचे, सब रसूल की जूती ऊपर। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया नीचे, रसूल की जूती ऊपर। अरे काबा नीचे। मेरे भाई दोनों हाथ बांध करके नारा हैदरी। काबा नीचे, अल्लाह का घर नीचे, लेकिन रसूल की जूती ऊपर। बैतुल मामूर नीचे, रसूल की जूती ऊपर। सिदरतुल मुंतहा नीचे, रसूल की जूती ऊपर। देखने अली अली करना और जमील हैदर का जुमला सुनना, पता चला आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया नीचे, रसूल की जूती ऊपर। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये जूती समय आप आज पर क्यों गए? तो रसूल की आवाज आएगी जमील हैदर दुनिया को समझाने के लिए कि कल कोई मेरे दिल का ऑपरेशन न करवाए। आज मैं रसूल जूती समय आज पर जाकर
कर, तो मेरा दिल कितना पाप हो। नौजवानों, बुजुर्गों, 2 जूतियां गई अर्श पर, रसूल की जूती नहीं, एक और जूती गई अर्श पर, वो है अली की जूती। बड़ा जुमला कह रहा हूँ, 2 जूतियां अर्श पर गई, बेईमानी 2 जूतियां अर्श पर गई। मौला आपके वालिद गिरामी को सेहत अता फरमाए, जो बीमार हैं उनको मौला सेहत अता फरमाए, जो परेशान हैं मौला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बेघर हैं मौला उनको अपने घर अता फरमाए, आपके बच्चों को मौला परवान चढ़ाए। 2 जूतियां गई अर्श पर, एक रसूल की जूती, दूसरी अली की जूती। रसूल की जूती क्यों गई अर्श पर? इसलिए कि उसको अली उठाते थे। अली की जूती अर्श पर क्यों गई? क्योंकि उस जूती को फातिमा उठाता। समझ में आ गया? पूरी तवज्जो चाहता। रसूल की जूती गई अर्श पर, रसूल की जूती गई अर्श पर, अली की जूती गई अर्श पर। रसूल की क्यों गई? कि अली उठाते थे। अली की क्यों गई? इसलिए कि अली की पापोश मुबारक की गर्द को बतूल अपनी चादर तदहीर से साफ करती थी। ये तो आइंदा मजालिस में गुफ्तगू होगी ना कि रसूल का मकाम क्या है और फातिमा का मकाम क्या है और अली को कुरान में बनस से कुरान क्या कहते हैं, ये तो आइंदा मजालिस में बताऊंगा। 2 जूतियां गई अर्श पर। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। यहाँ मैं मजालिस के सिलसिले में राना आसिम भाई के पास आए, वो मुझे घर लेकर गए और कहा कि भाई जमील हैदर, हमने आपके लिए कमरा मखसूस कर दिया, आप वहाँ बैठे आराम से मुतालिया करें। जब वो मुझे कमरे में लेकर गए, जैसे ही दरवाजा खोला फैमानी ने, तो मैंने देखा अंदर कालीन बिछा हुआ था। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, मिसाल को समझना कि मैंने देखा कि अंदर कारपेट बिछा हुआ था। मैं जूती को उतार कर फिर जाकर बैठा। क्यों भाई, इतनी कीमती तो नहीं थी कारपेट, लेकिन मैंने ज़हन में सोचा कि अगर मैं जूती समेत जाऊंगा तो भाई मानी कहेंगे देखो ये कितना बदतमीज है, इसको ये भी पता नहीं कि जूती उतार कर बैठते। लेकिन साहिवाल के नौजवानों, ईमान से बताओ, अगर मैं अपने घर जाऊं, बड़ा जुमला मैंने अर्ज किया, अगर मैं अपने घर जाऊं, कितनी ही कीमती कारपेट क्यों ना हो, मैं जूती समेत जाऊंगा, क्योंकि मेरा अपना घर है। रसूल जूती समेत अर्श पर गए, दुनिया को बताया कि दुनिया वाले याद रखना, आज कुछ मोहम्मद का घर है। मुझ मोहम्मद का घर, आज है मोहम्मद का घर। ताज्जुब इस बात पर न करो कि वहां से यहां से वहां कैसे गया, ताज्जुब इस बात पर किया करो कि अपने घर बुलंदी को छोड़कर सस्ते पर कैसे आया। नहीं, घबराए नहीं, आप मेरे सारे पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा है और ये जुमले बड़े कीमती कह रहा हूँ, इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं पंजाबी में, क्योंकि ये बड़े कीमती जुमले हैं। मेरे दोस्तों, आज ईमान से बताओ, जब हम अपनी बहनों और बेटियों की शादी करवाते हैं तो निकाह कहाँ होता है? अब तो तरक्की कर गया जमाना, शादी हाल में हो रहा है। जब भी निकाह होता है बेटी का तो बाप के घर में, दूल्हा के घर में है। जब भी निकाह होता है बेटी का तो बाप के घर में, खुदा की कसम, 73 फिरके इस हदीस कुर्सी पर मुशफिक है कि अल्लाह ने कहा कि जमील हैदर, मैंने अली और फातिमा का निकाह पढ़ा।
निकाह करने लगे। मेरे दोस्तों याद रखना, सुन्नत रसूल ये है कि बेटी की डोली बाप की दहलीज से उठे। समझ में, ये है सुन्नत रसूल। जब से उम्मत ने सुन्नत को छोड़ा है, फिर घर भी तो नहीं बस रहे। तवज्जो चाहता, पूरी तवज्जो चाहता। मेरी एक एक बात में नुक्ता है, अगर मैं आपको समझा सकूं तो। अजीज़ान मोहतरम याद रखना, इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा कि फतह मक्का के बाद फंतखबा रसूलुल्लाह ले अली इब्न अबी तालिब, रसूल ने मुंतखब किया अली को बुतों को तोड़ने के लिए। रसूल ने मुंतखब किया, रसूल ने मुंतखब किया अली को बुतों को तोड़ने के लिए। रसूल ने शूरा कमेटी कायम नहीं की थी? कितना बड़ा जुम्मा, शूरा नहीं किया था। मुझे किसी किताब में दिखाओ, फटी फटी पुरानी किताबों में कोई ज़ईफ़ रिवायत दिखाओ कि रसूल ने किसी से मशवरा किया हो कि भाई काबे में बुत रखे हैं, इनका क्या करना है। नहीं, लेकिन रसूल ने मुंतखब किया अली को बुतों को तोड़ने के लिए। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है कि वो रसूल जो इशारा करता है चांद दो टुकड़े हो जाता है। अगर वो रसूल इशारा करता तो क्या बुत न गिरते? लेकिन रसूल ने मुंतखब किया अली को और कहा कि या अली आओ और मेरे कांधों पे सवार हो जाओ। अली आए और कांधों पर सवार हो गए। इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक अजीब जुमला लिखा। इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि रसूल के दाएं कांधे पर कुरान की दो आयतें लिखी थी। एक आयत सूरत साफा और दूसरी अल फतह की आयत। लिखा था दाएं कांधे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और बाएं कांधे पर लिखा हुआ था नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। और उस फते अली के पाँव, बड़ा जुमला, उस फते अली के पाँव किसी ने कहा, किसी ने कि या रसूलल्लाह, अली ने वहां कदम रख दिए जहां कुरान की आयतें लिखी हुई है। रसूल ने खबरें कर कहा कि खामोश हो जा, अगर कुरान पर कुरान आ जाए तो हम बेवकूफ नहीं, हमारे पास इल्म भी है, हमारे पास अक्ल भी है। हम जितने ही गुनहगार हैं लेकिन हम किसी से जन्नत की भीख नहीं मांगे। हमारा इमाम वो है जो बेअयब है, बस उसी को पकड़ो। खुदा की कसम, दीन बच गया अल्लाह का और घर उजड़ गया अली और बतूल का। नौजवानों, मैं सख्त जुमले नहीं कहूंगा। दीन बच गया अल्लाह का और घर उजड़ गया अली और बतूल का। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुहद्दिस काशियानी ने एक अजीब जुमला लिखा। मुहद्दिस काशियानी ने लिखा कि हुआ सफर को ये काफिला शाम में पहुंचा था। ये गरीबों का लूटा हुआ काफिला पहली सफर को शाम में आया था। तो किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा, मौला, हम आपके बाबा को बहुत याद करते हैं, हम आपके बाबा का बहुत मातम करते हैं, हम आपके बाबा को बहुत रोते हैं। तो सैयद सज्जाद ने रोकर कहा, मोमिन, तुम मेरे बाबा को याद करते हो खाना खाकर, तुम मेरे बाबा को याद करते हो ठंडा पानी पीकर, लेकिन मेरे पापा ने तुम्हें उस वक्त याद किया था जब 3 दिन का भूख और प्यासा था। जब 3 दिन का भूख और प्यासा था, मेरे पास खैमे में आए और कहा, बेटा सज्जाद, जब मदीने जाना तो मेरे शियों को लाखों सलाम कहना और कहना, शियों, जब कोई परदेसी देखना तो मेरी गुर्बत को याद करना, जब कोई प्यासा देखना तो मेरी प्यास को याद करना। और सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि काश मेरे
पापा ने कहा, ए शियो, काश तुम करबला के मैदान में होते तो देखते कि मैंने असगर के लिए पानी किस तरह मांगा था। अज़ादरान हुसैन सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि आखिरी जुमला जो मेरे पापा ने कहा था वो रो कर कहा था, कहा बेटा सज्जाद, जब मदीने जाना तो मेरे शियों को कहना, शियो जब कोई यतीम बच्ची आपके घर में आ जाए तो उस बच्ची के सामने अपनी बेटियों को प्यार न करना, मुझे सकीना याद आती है। अज़ादरान इमाम हुसैन आखिरी जुमला कह रहा हूं मसैद का, मुअर्रिखीन ने लिखा कि जब शाम के जिंदान में शाम हो जाती थी और परिंदे अपने घरों को वापस लौटते थे तो बीबी सकीना रो कर कहती थी, भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा बहन सकीना ये परिंदे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो शहजादी रो कर कहती थी, भैया सज्जाद इन परिंदों का घर है और मुझे सकीना का कोई नहीं, इन परिंदों का घर है और हमारे बैठ का कोई घर नहीं। अज़ादरान हुसैन मुहद्दिस काशियानी ने लिखा कि ये बच्ची कैद खाने में रहती थी, अगर इम्तिहान न होता तो कयामत आ जाती, पापा को रोती, सारी रात बच्ची पापा को रोती। एक मरतबा बच्ची रोती रोती बच्ची की आंख लग गई, बच्ची तड़प कर उठी और कहती थी, अम्मा मैंने रात ख्वाब में पापा को देखा है, मुझे मेरा पापा मिला दो। अज़ादरान हुसैन पूरे जिंदान में रोने का हुल हुआ। सारे दमिश्की कहता है कि यजीद मेरे जाने पर सर रखे हुए सो रहा था, अचानक उठ बैठा, कहते हैं दमिश्की ये कैद खाने में रोने का चोर कहता है, हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना अपने पापा को पुकार रही है, कहा जाओ सर ले जाओ, बच्ची से मिला दो। अज़ादरान हुसैन हाथ बांध कर एक जुमला कहता हूँ, मेरे दोस्तों यजीद का दरोगा एक हाथ में उसने हुसैन के सर को उठाया, बालों से पकड़े हुए सैयद सज्जाद खड़े हो गए और रोकर कहा, ज़ालिम अगर इसके एक सर का बाल टूट जाता मेरी दादी जहरा सारी रात रोती। अज़ादरान हुसैन का सर जिंदान में आया, सैयद सज्जाद आए, कहा बहन सकीना तेरा पापा आ गया है, तेरा पापा आ गया है। अज़ादरान हुसैन शहजादी ने चेहरा हुसैन से कपड़े को हटाया, अपने मुंह को पीटा और तीन पैन किए, कहा पापा तेरी गर्दन की रगों को किस जालिम ने काटा है? बाबा ये तेरी दाढ़ी को खून से किसान किसने किया है? और उसके बाद रोकर कहा, बाबा मेरे कानों को देख लो, मेरे कानों से तेरे पास मुंडों को नोच कर उतारा गया। बाबा तेरे बाद शिमर ने मुझे तमाचे मारे, ये जुमले कहते बेटी ने बाप के लबों पे सर रख दिया, वही बेटी की जान निकल गई, जिंदान में कोहराम चलता हो गया है। सकीना है हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना, मातम हुसैन, मातम हुसैन, मातम हुसैन।